the topic that we have started, devotional paths to divine. So in this topic, we have studied about some of the ideas of paths to divine. Okay, so let's recall in briefly and then we will continue. Okay. Yes, Drishti. Yes, beta. And we have discussed about the idea of bhakti, that God and goddesses, they are the deities, and devotees are the we people we devote to the various gods that love towards the gods. And we have also learned about the bhakti in South India, Nayanas and Alvas. They were the saints, Nayana saints devoted to Shiva, and the Alva saints devoted to Vishnu, that who consider the all castes from like touchable, etc. And then we have also learned about hagiography and philosophy and bhakti, about Shankara and Ramanuja, who born in Tamil Nadu in the 11th century. Yes, very good. So these are topic path to divine. Divine means God. So what are the various paths that has been divided or that has been initiated by different persons to meet that divine? Okay, so those paths are devotional paths. So to meet that supreme goal, there were Nayanas and Alvars in South India that we have discussed. They were becoming popular. Then we discussed about Shankara and who born in Kerala, and then Ramanuja. Okay, their ideas, Ramanuja who born in Tamil Nadu. Then we have to discuss the next about Veer Shaivism. Okay, so Veer Shaivism, this idea that got popularity in Karnataka. Okay, so it means in various parts of India, the different ideas to meet the divine, to find the salvation, they were in existence. So yes, these Nayanas and Alvars that we have discussed. Then this about Shankara, Ramanuja, and now Veer Shaivism. About Veer Shaivism, we have to discuss. So this was also a connection between Tamil Bhakti movement, कि ये जो भक्ति मूवमेंट चल रही थी, ये जो डिवोशनल पाथ्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, ये किसमें है? भक्ति मूवमेंट में, कि हमने सर्टेन डाइटीज की भक्ति करनी है, डिवोशन करनी है, तो इसको क्या नाम दिया गया? भक्ति मूवमेंट. तो ये भक्ति मूवमेंट भी, टेम्पल वर्शिप भी, दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड और बेस्ट इसको जो रिप्रेजेंट किया है वो जो मूवमेंट है, दैट इज वीर शैवा मूवमेंट. ठीक है, और ये वीर शैवा मूवमेंट किसने इनिशिएट की, किसने स्टार्ट की? बाय बसावना एंड हिज कंपेनियंस. ठीक है, बसावना वो भी एक संत रहे हैं और उनके कंपेनियंस जैसे अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी. और ये मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई? इन कर्नाटका इन मिड 12th सेंचुरी. मतलब जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि टाइमलाइन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए डिफरेंट जो सच काइंड ऑफ सेंट्स पर्सन्स, ठीक है, दे आर मेकिंग पॉपुलर डिफरेंट आइडियाज. ठीक है, दे आर एडवोकेटिंग डिफरेंट आइडियाज फॉर डिवाइन. सो इन मिड 12th century this movement began in Karnataka. And what arguments or what ideas these Veer Shaivas gave? So they gave idea for equality of all human beings. ठीक है, किसके लिए उन्होंने आर्ग्यू किया? Equality of all human beings, that all human beings are equal. And they were against the Brahmanical ideas. Brahmanical ideas that society is divided into various castes
and women should not be included in different rituals. So such kind of ideas they were against. They were also against the all forms of ritual. Whatever there are different rituals you have to perform to find the god, और idol worship, मूर्ति पूजा, तो इस तरह के आइडियाज के भी वो अगेंस्ट थे. तो उन्होंने किस किस चीज को आर्ग्यू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, देन दे वर अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट द कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, देन दे वर अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप. मतलब ये सारी चीजों का जो आइडिया था, जो उन्होंने अपने आइडियाज प्रोपेगेट किए, पॉपुलर किए, प्रीच किए, तो ये सारे आइडियाज वीर शैविज्म के थे. ठीक है, ये आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, विच आइडियाज दे वर प्रोपेगेटेड बाय वीर शैविज्म, या थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन. ठीक है, तो उसमें यही आइडियाज आप बताओगे. और व्हाट वर देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट, है ना, कि वीर शैवाज का कास्ट के लिए क्या उनका एटीट्यूड था. अब कास्ट के लिए क्या एटीट्यूड था? दे वर अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम. ठीक है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अबाउट द कास्ट सिस्टम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज, एंड दे वर आल्सो अगेंस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड डिफरेंट idol worship, and against the treatment that was being done to the women. So this is the idea of Veer Shaivism. ठीक है, क्लियर बेटा? So now अब next इसमें हम बात करते हैं. So this is also one of the, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि different literature was being also written side by side by different these saints, hagiographies, poems, songs. These are some examples, and poems are also written in your books. ठीक है, you must read this. उसके बाद अब हम बात करते हैं saints of Maharashtra. So now the saints of Maharashtra, तो ये जो भी persons हैं इनको क्या कहा जाता था? saints मतलब संत, है ना. तो अब महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह के saints हुए from 13th to 17th century. अब देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये टाइमलाइन भी इंक्रीज हो. जैसे सबसे पहले हमने 7th to 9th सेंचुरी की बात की, है ना. उसके बाद फिर हमने 10th 12th सेंचुरी की बात की, फिर उसके बाद हमने 12th सेंचुरी के बाद अब ये 13th से 17th सेंचुरी में कौन कौन से आइडियाज पॉपुलर हुए. जैसे अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका इनकी बात की. अब महाराष्ट्र में भी क्या हुआ? अ नंबर ऑफ सेंट पोइट्स जो थे वो हमें देखने को मिले, और whose songs, उन्होंने भी सॉन्ग्स लिखे. किस लैंग्वेज में? मराठी में. ठीक है, एंड देयर सॉन्ग्स दे आल्सो इंस्पायरिंग पीपल, और वो सॉन्ग्स उनके वो भी लोगों को इंस्पायर कर रहे थे. अब उसमें कुछ हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो संत थे, सेंट पोइट्स थे, उनके नाम है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और वुमेन का भी नाम आता है जैसे सक्कूबाई. ठीक है, और एक फैमिली थी उनमें चोखा मेला. ठीक है, तो ये जो पर्सन्स थे, कई पर्सन्स वो अनटचेबल्स भी थे, और अनटचेबल की कौन सी कास्ट? महार कास्ट. ठीक है, तो इस तरह हम ये देखते हैं कि दीज सेंट्स, चाहे हमने इससे पहले वीर शैविज्म की बात की या नायनार अलवर्स की बात की, सो दे वर ऑल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट ऑल्सो. So there was no caste discrimination in this bhakti movement. ये जो भक्ति मूवमेंट के नए नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, so these all ideas are against the caste system that was being prevalent in the earlier society. ठीक है, so now Janeshwar, Namdev, Eknath, Tukaram, Sakkubai, so these are the different saint poets in Maharashtra, and they are also belonging to untouchable Mahar caste. So ये भी एक रीजनल ट्रेडिशन था भक्ति का, और इस रीजनल ट्रेडिशन में उन्होंने फोकस किस पे किया? भक्ति, विठला की भक्ति के ऊपर. ठीक है, सो विठला मीन्स फॉर्म ऑफ विष्णु, विष्णु की ही एक फॉर्म है, विष्णु का एक अवतार माना जाता है विठला. ठीक है, सो दैट इज इन पंधारपुर विठला टेम्पल, उनकी भक्ति पे ज्यादा फोकस किया इन्होंने. ठीक है, और उन्होंने यही कहा कि गॉड इज रिजाइडिंग इन ऑल द हार्ट्स ऑफ पीपल, कि गॉड सबके क्या है? दिलों में रहता है.
तो इस तरह उन्होंने विठला की भक्ति को भी ज्यादा प्रोपेगेट किया, उसको ज्यादा फोकस किया। और जैसे पिछले डिफरेंट सेंट पोइट्स हुए हैं, उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया है, रिचुअल को रिजेक्ट किया है। सो दीज सेंट पोइट आल्सो रिजेक्टेड ऑल द फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, जो आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी। तो रिचुअलिज्म, ये जो रिचुअल्स हैं, ये रिचुअल्स क्या करती हैं कि हम बाहर से दिखाते हैं दैट वी हैव रिस्पेक्ट फॉर गॉड। पाइटी मीन्स कि whatever the respect and our devotion to God we are showing. So that is the outward display of our devotion. And they were also against the social differences that were based on birth. So they were all against these ideas also. And they were also even rejected the idea of renunciation. Renunciation means that you have to leave your home for salvation, ठीक है। तो that means renunciation, अपने घर को छोड़ देना ताकि आप उस भगवान को पा सको। तो उन्होंने उस आइडिया को भी रिजेक्ट किया, they rejected this idea and they preferred to live in the families। और उन्होंने इसी चीज को प्रेफर किया कि आपको फैमिलीज में ही रहना चाहिए, ठीक है। फैमिली में रहो, फैमिली में रह के अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करो जैसे बाकी पर्सन कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ भगवान के लिए अपनी डिवोशन भी रखो, ठीक है। एंड ऑल्सो सर्व द फेलो ह्यूमन बींग्स। अगर आपको कोई दिखता है कि आपके फेलो ह्यूमन बींग जरूरत में है तो उनकी भी हेल्प करो, है ना। तो इस तरह के आइडियाज उन्होंने, हम कह सकते हैं कि they advocated these ideas and they rejected the different forms of ritualism and outward display of piety. Piety means our devotion, कि जो हम बाहरी दिखावा कर रहे हैं तो वो दिखावा नहीं करना। तो हमें अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करनी है, घर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उस भगवान की हम अपनी डिवोशन शो करने के लिए घर को छोड़ के एक संत बन गए हैं, तो हमने ऐसे नहीं करना। हम घर में रहते हुए ही कमाएं भी, साथ साथ में अगर कोई जरूरतमंद है तो उनकी सहायता भी करें। तो ये ह्यूमनिस्ट आइडिया जो था ये उन्होंने प्रोपेगेट किया। तो ये भी भक्ति मूवमेंट में ये ह्यूमनिस्ट आइडिया जो था ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया कि जो जरूरत में है, द पर्सन्स हु आर इन पेन, सो वी मस्ट हेल्प देम, ठीक है। तो ये भी एक इसमें फेमस गुजराती संत ने, जो नरसिंह मेहता, उनकी एक लाइन भी है दैट दीज आर द वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो ये कौन थे? वैष्णवास। जैसे संत ऑफ महाराष्ट्र, पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा? वीर शैवास, है ना, वीर शैवास के बारे में पढ़ा। और ये जो संत थे महाराष्ट्र के, इनको क्या कहा जाता था? वैष्णवास, ठीक है। सो दीज आर द वैष्णवास who understand the pain of others. Clear? तो इसी तरह नीचे एक पोएम दी गई है, ठीक है, ये क्योंकि मराठी में सारा इन्होंने सॉन्ग्स वगैरह इन पोइट्स ने मराठी में कंपोज किए, तो ये मराठी में ही डिवोशनल हाइम हम कह सकते हैं। हाइम मींस ये पोएम जो लिखी गई है, तो ये संत तुकाराम की लिखी गई है। इसके नीचे चोखा मेला सन उनकी लिखी गई है। चोखा मेला की फैमिली भी थी ना इसी में ही, संत में, तो चोखा मेला की फैमिली के द्वारा भी एक पोएम नीचे जो है वो लिखी गई है। तो ये डिफरेंट इन पोएम्स को पढ़ के पता चलता है कि दे वर अगेंस्ट द ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। तो इन सब के वो अगेंस्ट थे कि बाय बर्थ देयर आर सम डिफरेंसेस, इन सब के चीजों के अगेंस्ट थे। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट इन रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, जो इस टाइम पीरियड में और एमर्ज हुआ। तो इस टाइम पीरियड में कौन एमर्ज हुए? नाथ, पंथीस, सिद्धास एंड योगीज। तो ये भी एक अलग अलग तरह के रिलीजियस ग्रुप्स थे इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी रिजेक्ट किया जो पहले जितने भी रिचुअल सिस्टम था, ये जो कन्वेंशनल हमारी रिलीजन की इस तरह ये सारी रिचुअल्स हैं। तो ये क्या है? कन्वेंशनल मतलब एक ट्रेडिशन चला आ रहा था रिलीजन का, ठीक है, कि सोशल ऑर्डर, इस तरह की सोशल सोसाइटी में ये कास्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया, ठीक है। सो दे क्रिटिसाइज्ड all these rituals, conventional religion, all the social orders, and उन्होंने क्या किया? सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने इन सब चीजों को क्या किया? क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और ये जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, रिलीजियस ग्रुप्स ये कौन कौन से थे? ये नाथपंथीस, ठीक है, सिद्धाचार्यस,
एंड योगीज। तो ये ग्रुप थे कुछ पर्सन्स का जिनको कि नाथपंथी, सिद्धाचार्यस और योगीज कहा गया। और उन्होंने भी किस आइडिया को एडवोकेट किया? रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। ठीक है, जो हमने पिछले पढ़े वो दे डोंट फेवर द रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड ना, वो नहीं फेवर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फेवर किया। वो कहते थे कि दैट you have to leave this world to find the truth, to find the God, and to them the path to salvation, जो रास्ता था salvation का, वो क्या है? meditation में। ठीक है, you have, if you want to get the salvation, you have to leave the world. They advocated this renunciation and they focused on meditation, and you have to meditate to find that formless ultimate reality. ठीक है, formless means they were also against the idol worship. आइडल वर्शिप, आइडल क्या कि हम एक मूर्ति बना ली है, हमने उसकी एक फॉर्म बना ली है गॉड की, लेकिन फॉर्मलेस, फॉर्मलेस मीन और मतलब उस भगवान की कोई शेप नहीं है, कोई उसकी फॉर्म नहीं है, कोई उसकी मूर्ति नहीं है। तो फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी को वो क्या करते थे? फोकस करते थे, और उसी को ही हमने उसके साथ क्या करना है? वननेस ऑफ द सोल विद दैट अल्टीमेट सोल। ठीक है, तो इन आइडियाज को, इन बिलीव्स को वो फोकस करते थे। तो ये सारे क्या हो गए? उनके बिलीव्स। ठीक है, तो ये भी आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, दैट व्हाट आर द बिलीव्स ऑफ दीज नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज। तो ये सारे क्या हो गए? उनके बिलीव्स। ठीक है, ये सारे बिलीव्स है कि सब, इन सभी चीजों में वो विश्वास रखते थे कि दे वर क्रिटिसाइजिंग दीज ऑर्डर्स एंड दे वर एडवोकेटिंग द रिनाउंसिएशन एंड टू फाइंड, to get a path to the salvation that is in meditation, and the God is formless, and to find that ultimate reality to have to realization of oneness with that ultimate reality. ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने किस चीज को एडवोकेट किया? ट्रेनिंग ऑफ माइंड। ठीक है, दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड, कि आपको अपने माइंड और बॉडी की क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारी उन्होंने प्रैक्टिसेस को भी एडवोकेट किया कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको अपने माइंड की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, माइंड एंड बॉडी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी? थ्रू, उसके लिए डिफरेंट तरीके उन्होंने बताए, जैसे योगासना है ना, योगासना हो गया, और उसके बाद जैसे सो लाइक योगासना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन। ठीक है, तो ये तरीके उन्होंने बताया कि ये तरीकों को यूज करो, अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करो, एंड देन यू कैन अचीव द सैल्वेशन। ठीक है, और ये जो ग्रुप थे, जो हम जिनकी बात करते हैं नाथपंथी, सिद्धा, योगीज, तो ये जो ग्रुप थे ये लोअर कास्ट के लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए। ठीक है, सो दीज ग्रुप्स दे वर पॉपुलर इन लोअर कास्ट। ठीक है, क्लियर? वीर शैवास, देन वैष्णवास, और अब ये नाथपंथ, सिद्धास एंड योगीज। ठीक है, ये तीनों के आइडियाज क्लियर हो गए बेटा? एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, ओके, सो देन वी मूव फर्दर। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं इस्लाम एंड सूफिज्म। जैसे यहाँ पे कुछ नाथपंथी, सिद्धार्थ योगी, उनकी पिक्चर दी हुई है। देन इस्लाम एंड सूफिज्म। अब इस्लाम मीन्स रिलीजन। ठीक है, इस्लाम रिलीजन वो भी उस टाइम पर एग्जिस्टेंस में आ रहा था। अभी तक हमने बात की कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, देन डिफरेंट भक्ति मूवमेंट्स, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड गॉडेसेस, वो एग्जिस्टेंस में आ रही थी। अब इस्लाम वो भी यहाँ हमें कुछ एरियाज में वो भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, वो भी पॉपुलर हो रहा था। सो दीज संत मच इन कॉमन विद सूफीज, मतलब जैसे हम संत वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इस्लाम में कौन सा वर्ड यूज किया गया? सूफिज्म। ठीक है, सूफी वर्ड यूज किया गया उन संतों के लिए। सो उन्होंने भी कई आइडियाज जो थे वो एडवोकेट किए। और सूफी किसको कहा जाता था? मुस्लिम मिस्टिक्स। मिस्टिक मतलब जो उनके रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन्स थे। जैसे हमने डिफरेंट जो भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो संत हैं, उनको संत नाम दिया है ना, संत, और उन्होंने क्या नाम दिया? सूफी। तो सूफीज और मुस्लिम मिस्टिक्स, मिस्टिक मतलब जो स्पिरिचुअल उनके पर्सन्स हैं। और उन्होंने भी क्या किया? दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आउटवर्ड रिलीजियसिटी। आउटवर्ड रिलीजियसिटी मतलब ये जो रिचुअल्स वगैरह हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो आउटवर्ड, बाहरी दिखावा हो गया।
ठीक है। रिलीजियस मतलब जो भी हम रिलीजियस से रिलेटेड ट्रेडिशंस या रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं आउटवर्ड, वो बाहरी हम जो कर रहे हैं, तो उन्होंने उन सबको रिजेक्ट किया और किसको एम्फेसाइज किया ओनली लव एंड डिवोशन टू गॉड, कि हमें सिर्फ गॉड के लिए क्या रखना है, ओनली लव एंड आवर डिवोशन, और साथ ही साथ कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। सो कौन सी चीजों पे फोकस किया, पहले तो उन्होंने रिजेक्ट किया आउटवर्ड रिलीजियसिटी को, एम्फेसाइज किया लव एंड डिवोशन टू द गॉड, एंड देन कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। तो ये चीजों को उन्होंने फोकस किया इन सूफी मुस्लिम मिस्टिक्स ने। अब इस्लाम ने और किस आइडियाज को प्रोपोगेट किया, दीज आर आल्सो द डिफरेंट बिलीफ सिस्टम और डिफरेंट आइडियाज प्रोपोगेटेड बाय इस्लाम। तो फर्स्ट दे प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। उन्होंने कहा कि देयर गॉड इज वन ओनली, ठीक है, डिफरेंट गॉड गॉडेसेस की पूजा नहीं करनी, तो गॉड सिर्फ एक ही, मोनोथिज्म मींस मोनोथिज्म की सबमिशन टू वन गॉड, एक ही गॉड है, इसको प्रोपेगेट किया उन्होंने। ठीक है। आइडल वर्शिप, जैसे हमने कहा कि उन्होंने आउटवर्ड रिलीजियसिटी को रिजेक्ट किया, तो मतलब दे रिजेक्टेड द आइडल वर्शिप, है ना। और जो भी रिचुअल्स की थी उन्होंने उन सबको और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। जैसे हम कलेक्टिव अगर प्रेयर कर रहे हैं तो वो भी हमारी एक रिचुअल ही है। सो दे सिंप्लीफाइड द रिचुअल्स, कि जो भी हमारी रिचुअल्स हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उनमें सिर्फ सिंप्लीफाइड क्या है, कलेक्टिव प्रेयर्स, तो इसको और उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। सो एक उन्होंने एक होली लॉ भी उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि डेवलप किया। मतलब जैसे अगर उन्होंने, जैसे हमारे रिलीजियस अलग अलग रिलीजन में क्या है, अलग अलग कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो उन्होंने भी एक होली लॉ बनाया जिसको कि शरीयत कहा गया। ठीक है। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने एक होली लॉ बनाया जिसको शरीयत कहा गया। सूफीज जो थे वो जो भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म की जा रही हैं उनको रिजेक्ट करते थे। ठीक है। और जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स के जो आइडियाज हैं उनको फॉलो करते थे। सो इस तरह ये सूफिज्म के आइडियाज, अभी इनके आइडियाज और भी नेक्स्ट पेज पे हैं। यहां तक ये क्लियर है बेटा? ठीक है। सो ये हो गए अब सूफिज्म के आइडियाज। सूफिज्म के आइडियाज क्या है? सबमिशन टू वन गॉड, ठीक है, एक ही गॉड को मोनोथिज्म हो गया। व्हाट इज मोनोथिज्म? सबमिशन टू वन गॉड। दे रिजेक्टेड द आउटवर्ड रिलीजियसिटी, मींस रिजेक्टेड द रिचुअल्स, रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, है ना। दे एम्फेसाइज लव एंड कंपैशन टू गॉड, गॉड के लिए लव एंड कंपैशन को उन्होंने एम्फेसाइज किया। ठीक है। और साथ ही साथ एक होली लॉ उसको भी इलैबोरेट किया, शरीयत, and they also focused on the compassion towards all fellow human beings। तो इन चीजों को उन्होंने फोकस किया। उसके बाद इसी में अब जैसे जितने ये सेंट पोइट्स थे, सूफीज थे, जैसे यहाँ पे भी नीचे एक इमेज दिखाई गई है, ये कश्मीर में जो सूफी ऑर्डर डेवलप हुआ, ठीक है, उसकी दिखाई गई है। अब जैसे डिफरेंट सूफी सेंट्स थे, तो सूफी सेंट्स के साथ ही उन्होंने भी अलग अलग सेंट पोइट्स हमने पढ़े ना जो कंपोज करते थे पोइम्स, तो इन सूफीज ने भी कुछ पोइम्स की कंपोजिशन की, और जिसमें कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपना प्रेज टू गॉड, गॉड के लिए डिवोशन, वो सारी चीजें उन्होंने एक्सप्रेस की। इसमें जैसे प्रोज हो गया, एनेक्डोट्स, फेबल्स, ठीक है, छोटी स्टोरीज हो गई, पोइम्स हो गई, छोटे स्टैंजास हो गए, तो ये सारी चीजें उन्होंने डेवलप की। जैसे सेंट्रल एशिया के कुछ ग्रेट सूफीज थे, गजाली, रूमी, सादी, नाथपंथीज की तरह, नाथपंथी सिद्धा जैसे योगी हमने पढ़े ना, तो उसी तरह ये भी ग्रेट सूफीज थे जिन्होंने किस चीज में बिलीव किया, वो भी इसी चीज में बिलीव करते थे कि हार्ट कैन बी ट्रेन्ड। अभी नाथपंथी सिद्ध योगी वो क्या कहते थे कि यू कैन ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी, है ना। तो उन्होंने भी यही कहा कि हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन ए डिफरेंट वे, दैट माइंड एंड बॉडी कैन बी ट्रेन्ड, और उस ट्रेंड के लिए भी उन्होंने भी अलग से मेथड्स बताए। ठीक है। तो उन्होंने क्या मेथड्स बताए उन ट्रेनिंग के लिए, जैसे नाथपंथी सिद्ध योगी ने कुछ मेथड्स बताए, अब इन्होंने भी कुछ मेथड्स बताए। इन्होंने क्या कहा, हमें कैसे ट्रेन कर सकते हैं, यूजिंग जिक्र। जिक्र मीन्स चैंटिंग ऑफ गॉड।
गॉड कि हम भगवान के नाम का अगर हम एक नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, उन्होंने भगवान का नाम अगर हम, क्योंकि एक ही भगवान को वो मान रहे हैं, तो उसी भगवान के नाम को या उसका एक जो हमने फॉर्मूला एक रूल बना लिया है उसी को अगर हम बार बार बोलते जाएंगे, चैंटिंग करते जाएंगे, तो वो क्या है, एक मेथड है। उसके बाद कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब हम एक जगह जैसे हम कहते हैं ना मेडिटेशन करना, तो इसी तरह कंटेम्पलेशन भी है कि चिंतन करना एक जगह बैठकर, ठीक है। तो कंटेम्पलेशन हो गया। सामा सिंगिंग करना, फिर रैक्स मतलब डांसिंग करना, उस डिवोशन में डांस करना, डिवोशन में ही सिंगिंग करना, या जो पैराबल्स हैं, पैराबल्स मतलब जो गॉड की स्टोरीज हैं उनके बारे में और डिस्कशंस करना, ब्रेथ कंट्रोल। तो ये सारे आइडियाज, लेकिन ये सारे किसके आइडियाज कैसे हमने फॉलो करने हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर, और वो मास्टर को क्या नाम दिया गया, पीर, ठीक है। तो अब इन्होंने भी क्या कहा, पोइम्स कंपोज्ड की, जैसे डिफरेंट इन प्रोज, ठीक है, प्रोज, एनेक्डोट्स, फेबल्स, इनमें उन्होंने काफी पोइम्स भी और रिच लिटरेचर जो था वो इन्होंने बनाया, ठीक है, पोइम्स हो गई। और साथ ही साथ उन्होंने ट्रेनिंग के लिए क्या कहा, जिक्र, देन कंटेम्पलेशन, सामा, राग्स, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ठीक है, ब्रेथ कंट्रोल, ये डिफरेंट उन्होंने क्या दिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कि ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। और कैसे ट्रेन कर सकते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ पीर, ठीक है, गाइडेंस होनी चाहिए पीर की। मास्टर, पीर मतलब जो उनका मास्टर है, जो हम सूफी मिस्टिक्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो मुस्लिम मिस्टिक्स, सूफी सेंट, तो उनके गाइडेंस में ही, जिसको पीर भी कहा जाने लगा, तो उनकी गाइडेंस में ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह जब रिलीजियस उन्होंने एक टीचर की जरूरत समझी कि मेथड चाहिए, ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग कौन सिखाएगा, गाइडेंस होनी चाहिए मास्टर की, तो इस तरह धीरे धीरे एक सिलसिला इमर्ज हो गया, इमर्ज द सिलसिला। अब ये सिलसिला वर्ड क्या है, सिलसिला मीन्स जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, कि जो सूफी टीचर्स है ना, उनकी जैसे एक फैमिली की डायनेस्टी होती है ना, एक फैमिली है, एक फादर है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, जैसे रूलर्स बन रहा था, तो इसमें एक सूफी, उस सूफी के बाद उसकी गद्दी किसी और सूफी को मिल गई, फिर उसके बाद कोई और सूफी सेंट आ गया, फिर उसके बाद कोई और सूफी सेंट, तो इस तरह एक जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स स्टार्ट हो गई, जिसको कि सिलसिला वर्ड कहा गया, सिलसिला वर्ड यूज किया गया उसके लिए। So silsila, thus this silsila emerged a genealogy of Sufi teachers, और जितने टीचर्स वो होते थे उनका जो तरीका होता था, मतलब इंस्ट्रक्शन का मेथड होता था, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता था जो कि पिछले टीचर्स थे, क्योंकि जेनोलॉजी थी, सूफी टीचर्स एक के बाद एक नेक्स्ट टीचर्स आ रहे थे, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट टीचर है उसका तरीका, जो रिचुअल प्रैक्टिस करने का, ये मेथड्स ट्रेनिंग करने का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए जो पिछले टीचर्स हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, एनी डाउट टिल नाउ? यस, एनीवन हु कैन टेल मी हु आर दीज सूफीज? Who are these Sufis? Yes, raise your hand, beta. Hanji Arshia. Sufis were the Muslim mystics or the spiritual people of the Islam religion. Yes, so Sufis are Muslim mystics or they are the spiritual persons of Islam religion. और उन्होंने डिफरेंट आइडियाज को प्रोपेगेट किया, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को प्रोपेगेट किया, और इसी के साथ साथ एक सिलसिला भी एमर्ज हो गया जिसमें कि एक जियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स इन्वॉल्व थी, जो कि इन गाइडेंस या मेथड्स देते थे इंस्ट्रक्शंस के, और वो डिफरेंट अलग अलग टीचर्स के थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक कुरान की ही मैन्युस्क्रिप्ट दी गई है जो कि हमें डेक्कन एरिया से मिलती है, ठीक है, इस डेक्कन एरिया से, और इसी के साथ ये हॉस्पाइस का मीनिंग दिया गया है। हॉस्पाइस का मीनिंग मतलब कि रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, कि एक ट्रेवलर्स के लिए रेस्ट करने के लिए जो हाउस वगैरह बनाया जाता था,
ठीक है। अब इस तरह ये जो सूफी सेंट्स थे, अ लार्ज नंबर ऑफ सूफी सेंट्स दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, बिकॉज दैट वाज द इस्लाम ओरिजिनेटेड, वहां पे ही इस्लाम ओरिजिनेट हुआ था, इमर्ज हुआ था। तो वहां से काफी सूफी सेंट्स यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत का हम कह सकते हैं रूल था, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे रूल था उस टाइम पर, काफी सूफी सेंट्स वहां से आए थे और यहाँ इंडिया में वो सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में काफी सूफी सेंटर्स जो थे वो बनाए गए, ठीक है, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट ये बनाए गए थे। और कई, जैसे चिश्ती सिलसिला जो था, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था, जिसमें एक लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर, जैसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, देन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, देन बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, देन बंदान निवाज ऑफ गिरादुराज ऑफ गुलबर्गा। तो ये एक सिलसिला, कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। ये काफी उस टाइम पर इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था, काफी पॉपुलर था, ठीक है। तो इसी को, वैसे तो थोड़ा सा सूफी ऑर्डर रह गया है, ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और फिर नॉर्थ इंडिया, अभी तक हमने जितने ये डिवोशनल पाथ्स की, मोस्टली दीज वर फ्रॉम द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारे साउथ इंडिया की हमने बात की। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया में भी क्या क्या रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रही थी, ठीक है। सो एनी डाउट बेटा? Okay, so then we will continue with this. Thank you, beta.